No, bisa ko mazusunawo sing include kanya ni bagay tini sing Minister of sini MSM ni Minister of sing rohar kha tei sing sini or অক্টোবর আজকের দিন হচ্ছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জন্মদিন। তো এই জন্মদিবস উপলক্ষে সারা রাজ্যে বা সারা ভারতবর্ষে ইউনিটি ফর্ম হিসেবে উদযাপন করি এবং অবজার্ভ করি। ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন সংস্থা থেকে বা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা করে থাকি এবং টিআরপিসি পক্ষ থেকে আজ আমরা এখানে এখন উদযাপন করবো আমরা অফিসিয়ালি জাস্ট শুরু হচ্ছে। তো আজকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জয়ন্তী দিবসে একটা স্কিম আমরা বড় স্কিম ত্রিপুরা থেকে ইনক্লুড করতে যাচ্ছি, যেটা 15 আগস্টে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা নামে যে ডিক্লেয়ার করছে, সেখানে আমাদের বিভিন্ন পেশা 18 যে পেশা 18 যে পেশা তাদেরকে বিশ্বকর্মা যোজনা আওতায় আনা হচ্ছে, তাদেরকে স্কিম দেওয়া হবে, তাদেরকে বেনিফিট দেওয়া হবে, তাদেরকে ইকোনমিক দিক থেকে অনেক হেল্প করা হবে। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে আমরা যেহেতু এটা টিআরপিসি হচ্ছে বিশেষ করে প্লান্টেশনের দিক থেকে, তো এখানে রাবার প্লান্টেশন কন্টিনিউ হচ্ছে এবং এই বছর থেকে আগর প্লান্টেশন, লেবু প্লান্টেশন, আগামী বছর থেকে সন্ন্যতি প্লান্টেশন, এইসব প্লান্টেশন ভেরিয়াস প্লান্টেশন। তো এই প্লান্টেশন যে ভেরিয়াস হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে বা হয়ে থাকছে, সেখানকার যেটা আমাদের যে বেনিফিশিয়ারি আর্টিসান যেটা রাবার আর্টিসান, তাদের এই আর্টিসান এখানে ইনক্লুড হচ্ছে। তো এটা বিশেষ করে এই আর্টিসানদেরকে এই যোজনাতে ইনক্লুড করার জন্য আজকে আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ওনার কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছি। তো এই সাবমিটে আমাদের ক্লিয়ার আমাদের মেনশন করা হচ্ছে যে আমাদের যে রাবার আর্টিসান অথবা বেম্বু আগরবাতি স্টিকার আর্টিসান বা আগর আর্টিসান, তাদেরকে এই যোজনা আওতা নিয়ে তাদেরকে যেন অর্থনৈতিক দিক থেকে হেল্প করা যেতে পারে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস গভর্নমেন্ট সেটাকে নজর দেবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন করবে এবং এই আর্টিসানগুলো ইনক্লুড হয়ে যাবে। তো সেই জন্য আজকে আমরা এই নয়া এক স্কিম, এটা হচ্ছে বিশ্বকর্মা যোজনার একটা নয়া, আর এই নয়ার উপর দিয়ে আজকে আর 3টি যে আর্টিসানকে ইনক্লুড করার জন্য আমরা যে আপিল করছি সরকারকে, আমাদের সরকারকে আমরা ইনক্লুড করার জন্য বলছি। তো এই নয়া যে স্কিম ইনক্লুশন, তাকে আমরা পাবলিকের কাছে তুলে ধরছি এবং গভর্নমেন্টের কাছে তুলে ধরছি। সেই জন্য আজকে এই প্রেস মিট এবং আজকে প্রেস মিটের মাধ্যমে আমরা এটা আপিল করবো। আজকে যে সারা ভারতবর্ষে একতা করে যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমাদেরকে ইউনিটি ইন্টিগ্রিটি যে ভারতবর্ষে যে মহান আদর্শে আমাদের প্রতিষ্ঠা করছে, সেই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তার জন্ম দিবসকে এবং বিশেষ করে ওনার সাহায্যে আজকে আমরা আজ ভারতবাসী। তো এই মহৎ একটা দিনে ওনাকে সশ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং দেশবাসীকে সবাইকে আমি কি বলবো শুভেচ্ছা জানাবো এবং আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং আগামী দিনের আমরা ইন্টিগ্রিটি ইউনিটিকে আরো স্ট্রেংথ করে ভারতবর্ষকে আরো সামনে নেওয়ার জন্য এবং মোদিজি যে কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরাকে সুপার স্টেট বানানোর জন্য, তো সুপার স্টেট বানানোর জন্য আমাদের কি সেখানে আমাদের দায়িত্ব আছে, সেখানে আমাদের কি করণীয় আছে, সেগুলোকে আমরা সরকারকে তুলে দেওয়া, এটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। তো সেই জন্য আজ এই সুপার স্টেট বানানোর জন্য এখানে যেটা সবচেয়ে আর্টিসান বেশি রাবার আর্টিসান, তো রাবার আর্টিসান সেখানে ডিপ্রাইভ হচ্ছে, ইনক্লুড হচ্ছে, সেটাকে মনিটরিং দেওয়ার আজকে এই দিনটা। সেই জন্য আজকে আমরা প্রেস মিট করা হচ্ছে। क्या रबर और क्या रबर आर्टिसन, अगरबत्ती आर्टिसन, बैम्बू स्टिक आर्टिसन, ये 3टी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो ये इसमें इंक्लूड करने के लिए आज हम लोग सबमिशन किया था। कौन किसको सबमिशन किया है? सबमिशन किया था चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोग का स्टेट, ये सेंट्रल का मैटर है, इसलिए हम लोग स्टेट सेंट्रल का जो मिनिस्टर है, एमएससी का जो मिनिस्टर है नारायण तातू राणा जी, इनका पास से हम लोग सबमिट किया है और एक कॉपी हम लोग सीएम, हम लोग ऑनरेबल सीएम मनीषा जी के पास से सबमिट किया। ऑलरेडी हम लोग बात भी कर चुका है और ये बहुत पॉजिटिव है और मेरा उम्मीद है वो जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। क्या बोला चीफ मिनिस्टर ने? चीफ मिनिस्टर हाँ वो ये डिस्कशन करने के लिए कहा, ये तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं, वो तो सेंट्रल का, ये सेंट्रल के स्कीम है, फिर भी चीफ मिनिस्टर ये बहुत पॉजिटिव है और हमने अब सबमिशन भी किया। चीफ मिनिस्टर साहब को एंड she has already forwarded the letter to our honorable cabinet minister Shri Narayan Rane ji also, who is the minister for MSME, and we are quite hopeful कि वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, खासतौर के ऊपर रबर, अगरवुड का और जो बैम्बू का है उसके अंदर आर्टिसंस के लिए, जिससे कि जो हमारे बेनिफिशियरी और जो स्टेट के अंदर जो क्राफ्टमैन्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हम जो अभी वर्क कर रहे हैं उसमें जो एसटी कंपोनेंट है
तो एसटी कंपोनेंट के बारे में बहुत सी सरकारों को भी नहीं पता होता, बहुत से डिपार्टमेंट मैंने खुद देखा है यहाँ पे स्टेट में डिपार्टमेंट्स को नहीं पता एसटी कंपोनेंट है क्या चीज़, लेकिन वो सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होता है जिसके तहत भारत सरकार ने इस बारी का जो 2023-24 का जो बजट है वो 1,17,000 करोड़ का एलोकेट किया था, जिसके अंदर से और वो पूरी 42 मिनिस्ट्रीज को कवर करता है, जिसमें से अभी तक ओनली 52,000 के आसपास का स्पेंड हुआ है, रेस्ट अराउंड 65,000 करोड़ रुपये बचा हुआ है। तो जिसमें 218 स्कीम्स हैं, 218 स्कीम्स हैं अलोन जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए हैं। तो हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्कीम जो हमारा एक जो एमओए है, जो हमारा बायलॉज है, उनके साथ मैच हो रही हैं और उन स्कीम्स को हम इसके अंदर उठाएंगे। इसके अलावा हम लोग अपना जो नेक्स्ट इनिशिएटिव के अंदर जो हमने बात अभी किया है, तो उसके अंदर हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो जिसके अंदर जो पूरा एक इंडस्ट्री के जो बेसिकली एक्सपीरियंस लोग हैं उनका हम असिस्टेंस लें, और खासतौर के ऊपर कोई भी हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऐसा बर्डन ना हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द डिपार्टमेंट, जस्ट ऑन प्रो बोनो बेसिस। उसमें भी बहुत जो नामी लोग हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो लोग हमारे त्रिपुरा में और खासतौर पे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए सामने आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर वो सब चीजें करेंगे। और काफी कुछ जो स्कीम्स हैं, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा कि उन स्कीम्स को हम अलाइन करेंगे, और बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई भी स्कीम है, अगर हम उसको बनाते हैं और आम जनता तक अगर उसको पहुंचना है तो सिस्टम क्लीन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी है। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी और एक करप्शन फ्री सिस्टम होगा, जब भी उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी तक जाता है, अदरवाइज वो नहीं जा पाता, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। तो इसीलिए आज का जो ये हमारा दिन है, जो एक नेशनल इंटीग्रेशन डे है, नेशनल यूनिटी डे है, जो हमारे आदरणीय जो हमारे एक रोल मॉडल हैं अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम के ऊपर ये स्टार्ट हुआ है और वो एक मिसाल माने जाते हैं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उन्हीं के साथ साथ अभी एक जो ये एक सतर्कता पखवाड़ा चल रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, जिसका जो इस साल का जो थीम जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन। तो हमारा जो टीआरपीसीएल है, तो वी आर वेरी मच कमिटेड सेइंग नो टू द करप्शन एंड वी आर कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हम भारत के डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारतीयों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम ने बोला कि जो समाज की जो आखिरी जो पंक्ति में जो खड़ा हुआ जो आदमी है, जिसकी दिक्कत है, जो परेशानी के अंदर है, और जो एक ये जो बेसिक जो कंसेप्ट जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उस आदमी को एम्पावर करना है, तो उसी के माध्यम से उसी हम एक ट्रैक को लेते हुए हमें एम्पावरमेंट का करने जा रहे हैं। एंड उसके लिए हमने एक कुछ ऑडिट्स प्रोग्राम्स भी हम आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि कुछ अगर हमारे जो दिक्कतें रही हैं सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम उन दिक्कतों से बाहर निकले और एक क्लीन ट्रैक उसमें निकाले। दूसरा जरूरी है कि कोई भी चीज जो होता है वो टाइम के ऊपर मिलना चाहिए बेनिफिशियरी को। अगर वो टाइम के ऊपर नहीं मिलेगा तो उसका कोई यूज नहीं होता है। तो इसीलिए जो क्लीन जो सिस्टम है, जो क्लीन एक गवर्नेंस है, जहां हम गुड गवर्नेंस का बात करते हैं, तो इट शुड बी ए क्विक मोबिलिटी, इट शुड बी ए करप्शन फ्री मोबिलिटी एंड इट शुड बी अकाउंटेबल मोबिलिटी। तो वो हमें चीज उनको देना है जनता को। और जो चीजें हम पहले नहीं कर पाए, वो चीजें अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जिससे कि जो बाकी जो कॉर्पोरेशंस वगैरह है उनसे भी हमारा बात चल रहा है कि हम सबको अलाइन करके सबको एक साथ जुट करके लेके चलें। खासतौर पे एसपी कॉर्पोरेशन से भी हमारा बात हुआ है, उनको भी हम अपने अलाइन करके चलेंगे, जिससे कि ट्राइबल्स को और ज्यादा बेनिफिट मिले। और जो खासतौर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है त्रिपुरा के अंदर, तो हम स्किलिंग के ऊपर और एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर की फोकस कर रहे हैं। और अगर वो हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमारा जो मॉडल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, हर साल के अंदर हम कम से कम नहीं तो 30 से 35 हजार युवाओं को हम त्रिपुरा में रोजगार दे सकते हैं। और जिस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ रहा है हमारे पास में, जो हम लोग वहाँ पे अलाइन कर रहे हैं चीजों को, और यहाँ से भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट भी इस चीज के अंदर मिल रहा है, तो नेवरदलेस मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो हम एक एम्पावरमेंट के लिए लेके चले हुए गुड गवर्नेंस को देने के लिए, हम बिल्कुल उसमें सक्सेसफुल होंगे। और हमें बिल्कुल जो आप लोगों का जो सपना है, जो यहाँ के लोगों का, वो पूरा करने के लिए हम नई दिशा और दशा देंगे।
सर त्रिपुरा में